کریں گے حابیل اور قابیل کے اس واقعے کی، ایک ایسا واقعہ جو انسانی تاریخ کا پہلا قتل بھی ہے اور حسد، غرور اور نافرمانی کے انجام کی ایک ایسی مثال بھی جس نے آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک بڑا سبق دیا۔ یہ صرف دو بھائیوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسانیت کی تاریخ کا وہ پہلا باب ہے جہاں انسان کے دل میں پیدا ہونے والی حسد کی آگ نے ایک ایسا جرم جنم دیا جس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ انسانی تاریخ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک نائب بنانے والا ہے تو فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھہرایا اور ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا تاکہ انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ دونوں جنت میں سکون اور راحت کے ساتھ رہنے لگے، لیکن شیطان نے حسد اور تکبر کی وجہ سے انسان کا دشمن بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ شیطان نے انسان سے بدلہ لینے کا عزم کیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی دشمنی کی وجہ سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکا دیا اور انہیں جنت کے اس درخت سے کھانے پر آمادہ کر لیا جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ زمین پر زندگی ایک آزمائش ہوگی اور جو لوگ ہدایت پر چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ ان کے ہاں بچے پیدا ہونے لگے اور زمین پر انسانی زندگی پھیلنے لگی۔ ابتدائی زمانے میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نسل بڑھانے کے لیے ایک خاص طریقہ مقرر فرمایا تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر نکاح کے لیے یہ اصول تھا کہ ایک جوڑے میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسرے جوڑے میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کیا جاتا۔ اسی طرح انسانوں کی نسل آگے بڑھتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں دو بیٹے خاص طور پر مشہور ہوئے جن کے نام حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل نرم مزاج، سادہ دل اور اللہ سے ڈرنے والے انسان تھے۔ ان کا دل پاکیزہ تھا اور وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کی زندگی سادگی اور تقوی کی مثال تھی۔ دوسری طرف قابیل کا مزاج کچھ مختلف تھا۔ وہ دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ مائل تھا اور اس کے اندر ضد اور غرور بھی موجود تھا۔ یہی فرق آگے چل کر ایک بڑے واقعے کا سبب بننے والا تھا۔ حابیل کا پیشہ مویشی پالنا تھا۔ وہ بکریاں اور بھیڑیں چراتے تھے اور اپنی سادہ زندگی میں اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وہ زمین میں بیج بوتا اور فصلیں اگاتا تھا۔ اس کے پاس اناج اور زمین کی پیداوار تھی۔ جب دونوں بھائی جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کے نکاح کا انتظام کرنا چاہا۔ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن نسبتاً کم خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی اپنی جڑواں بہن ہی اس کے نکاح میں رہے کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ قابیل نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جب یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों भाइयों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया ताकि अल्लाह की तरफ से फैसला जाहिर हो जाए। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग नाजिल होती और कुर्बानी को जला देती। जिसकी कुर्बानी जल जाती वो कबूल समझी जाती और जिसकी बाकी रह जाती वो रद्द समझी जाती। हाबील ने जब कुर्बानी पेश करने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी बेहतरीन बकरी अल्लाह के लिए मुंतखब की। वो जानवर सेहतमंद भी था और खूबसूरत भी। हाबील के दिल में इखलास था, इसलिए उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती चीज पेश की। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती से कुछ अनाज कुर्बानी के तौर पर पेश किया, मगर उसने बेहतरीन अनाज देने के बजाय खराब और कम दर्जे का अनाज मुंतखब किया। जब दोनों भाइयों की कुर्बानियां पेश की गईं, तो एक अजीब मंजर सामने आया। आसमान से आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। ये इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ताला उनसे राजी हैं और उनकी कुर्बानी कबूल हो गई है। लेकिन काबिल की कुर्बानी वैसे ही पड़ी रही। ये मंजर देखकर काबिल के दिल में हसद की आग भड़क उठी और यही हसद आगे चलकर एक ऐसे वाक़े का सबब बनने वाला था जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल बन गया। नाजरीन, जब कुर्बानी का फैसला जाहिर हो गया और सबने देख लिया कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है जबकि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो इस मंजर ने काबिल के दिल में एक ऐसी आग भड़का दी जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगी। ये आग हसद की आग थी और हसद वो जहर है जो इंसान के दिल को अंदर से खोखला कर देता है। काबिल के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर उसके भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हुई और उसकी क्यों नहीं। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल अहमियत इंसान की नीयत और तकवा की होती है। इसके बजाय उसने अपने भाई को ही उस नाकामी का जिम्मेदार समझना शुरू कर दिया। हसद इंसान के दिल में जब जड़ पकड़ लेता है तो वो अक्ल को अंधा कर देता है। यही कुछ काबिल के साथ हो रहा था। वो मुसलसल अपने भाई के बारे में सोचता रहता और उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने भाई हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर हाबील ने निहायत सुकून और नरमी से जवाब दिया। उनके दिल में ना गुस्सा था और ना ही बदले की कोई ख्वाहिश। उन्होंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। यह जवाब इस बात की अलामत था कि हाबील का दिल अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था। वो किसी भी सूरत अपने भाई के खिलाफ जुल्म नहीं करना चाहते थे, मगर काबिल के दिल पर हसद और गुरूर का पर्दा पड़ चुका था। शैतान उसके दिल में मुसलसल वसवसे डाल रहा था। वो उसे ये एहसास दिला रहा था कि अगर हाबील जिंदा रहेगा तो हमेशा उससे बेहतर समझा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता काबिल के दिल में यह ख्याल मजबूत होता गया कि उसके मसले का वाहिद हल यही है कि वो अपने भाई को रास्ते से हटा दे। ये सोच इंसान के दिल में जब पैदा हो जाए तो वो इंसान को तबाही के किनारे तक ले जाती है। एक दिन दोनों भाई खुले मैदान में थे। इर्द गिर्द खामोशी थी। जमीन पर हवा हल्के हल्के चल रही थी और फजा में सुकून था, मगर काबिल के दिल में तूफान बरपा था। वो अपने भाई के करीब आया। हाबील को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका अपना भाई उसके साथ क्या करने वाला। रिवायतों में बयान किया जाता है कि काबिल ने एक भारी पत्थर उठाया और अचानक हाबील के सर पर मार दिया। पत्थर की ज़र्ब इतनी शदीद थी कि हाबील जमीन पर गिर पड़े और उनकी जान निकल गई। ये लम्हा इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। जमीन पर पहली बार एक इंसान का खून बहाया गया, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। जब हाबील की जान निकल गई तो मैदान में एक अजीब खामोशी छा गई। काबिल कुछ लम्हों तक अपने भाई की लाश को देखता रहा। अब उसका गुस्सा खत्म हो चुका था, मगर अब उसके दिल में एक नई कैफियत पैदा हो रही थी। ये कैफियत खौफ और परेशानी की थी। उसने पहले कभी किसी इंसान को मरते नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। वो अपने भाई की लाश को कभी इधर खींचता कभी इधर, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस मुर्दा जिस्म के साथ क्या करना चाहिए। इसी परेशानी के आलम में अल्लाह ताला ने उसे एक मंजर दिखाया।
करीब ही दो कुएं आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक कुआं दूसरे को मार देता है। फिर वो अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो मुर्दा कुएं को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढांप देता है। काबिल ये मंजर हैरत से देख रहा था। ये मंजर उसके लिए एक सबक था। अब उसे समझ आ गया कि मुर्दा जिस्म को जमीन में दफन किया जाता है। ये देखकर काबिल के दिल में अफसोस पैदा हुआ। उसने कहा, अफसोस, मैं तो उस कौवे जितना भी न बन सका कि अपने भाई की लाश को दफनाने का तरीका ही सीख लेता। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई हाबिल को दफन कर दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ऐसा जुर्म कर चुका था जो हमेशा के लिए तारीख में लिखा जा चुका था। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र सूरतुल माइदा में किया गया है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े के ज़रिए इंसानों को ये पैगाम दिया कि हसद और गुरूर इंसान को किस कदर अंधा कर देते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। इसी वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने ये उसूल बयान फरमाया कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के कत्ल की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। एक बाप के लिए उससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे का कातिल बन जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मौत पर बहुत गमगीन हुए। ये वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का अलमिया नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक था। नाज़रीन, हाबील और काबिल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के दिल में पैदा होने वाला हसद उसे किस कदर ख़तरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। हसद इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है। जब इंसान किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो खुद भी तबाह हो जाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस्लाम में हसद से बचने की सख्त ताकीद की गई है। इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल को साफ रखे और दूसरों की कामयाबी पर खुश हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक असल अहमियत इंसान के दिल की नीयत और तकवा की है। हाबील की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि उसके दिल में इखलास था, जबकि काबिल की कुर्बानी इसलिए रद्द हो गई क्योंकि उसके दिल में गुरूर और दुनिया की मोहब्बत थी। कि इंसान को हमेशा अपने दिल को हसद से पाक रखना चाहिए, क्योंकि जो शख्स हसद और गुरूर का रास्ता इख्तियार करता है वो आखिरकार तबाही की तरफ बढ़ जाता है, और जो शख्स तकवा और इखलास इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे इज्जत और कामयाबी अता फरमाता है। हाबील और काबिल की ये दास्तान क़यामत तक इंसानों को यही पैगाम देती रहेगी कि दिल का इखलास इंसान को बुलंद करता है और हसद इंसान को अंधेरों में धकेल देता है। नाज़रीन, हाबील और काबिल के वाक़े ने इंसानियत को ये सबक दिया कि हसद इंसान को किस कदर ख़तरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। मगर इंसानी तारीख़ का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वक्त गुज़रता रहा, नस्लें बढ़ती गईं और ज़मीन पर इंसानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ इलाक़ों में आबाद होने लगी और यूं इंसानी मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। इब्तिदाई ज़माने में लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके लिए रहनुमाई का ज़रिया थीं। लोग अल्लाह की इबादत करते, एक दूसरे के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करते और बुराइयों से बचने की कोशिश करते थे। मगर शैतान अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। वो इंसानों को गुमराह करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था। शैतान जानता था कि इंसान को सीधे रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका उसके दिल में ख्वाहिशात को भड़काना है। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में ऐसे वसवसे डालने लगा जिनके जरिए इंसान अल्लाह के अहकाम से दूर होने लगे। वक्त के साथ साथ कुछ लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेसब्र होने लगे। जहां पहले लोग हया और पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते थे, वहां आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिलों में बेहयाई के बीज भी पड़ने लगे। इंसानी मुआशरा जब बढ़ता है तो उसके साथ आजमाइशें भी बढ़ती हैं। यही कुछ इस वक्त भी हो रहा था। नस्लें बढ़ रही थीं और लोग मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हो रहे थे। बाज़ लोग अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे थे। रिवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लों में एक ऐसा ज़माना आया
जब इंसानों के दिलों में गुनाह के रुझानात पैदा होने लगे। शैतान ने इंसान को बुराई की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो बज़ाहिर छोटा लगता था, मगर उसके नताइज बहुत खतरनाक थे। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई की तरफ ले जाने लगा। शैतान का तरीका हमेशा यही होता है कि वो इंसान को फौरन बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि पहले दिल में छोटे वसवसे डालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस रास्ते पर चलने का आदी बना देता है। इसी तरह कुछ लोगों के दिलों में नाजायज ख्वाहिशात पैदा होने लगी। इब्तिदा में ये सिर्फ ख्यालात थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात अमल में तब्दील होने लगे। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखता तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के करीब पहुंच जाता है। यही वो लम्हा था जब इंसानी तारीख में एक और खतरनाक दरवाज़ा खुलने वाला था। रिवायात में बयान किया जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब इंसानों के एक गिरोह ने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हया और पाकीज़गी को कमज़ोर होने दिया। शैतान ने उनके दिलों में ये ख्याल पैदा किया कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यही वो सोच थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े गुनाह का सबब बनने वाली थी। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे तारीख में इंसान के अखलाकी ज़वाल की पहली बड़ी अलामत समझा जाता है। ये वो लम्हा था जब पहली मर्तबा इंसान ने अपनी ख्वाहिशात के आगे हार मान ली और एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ जिसने इंसानी मुआशरे को हिला कर रख दिया। ये गुनाह था जिना। जिना सिर्फ एक फ़र्द का गुनाह नहीं होता, बल्कि ये पूरे मुआशरे के अखलाकी निज़ाम को मुतासिर करता है। यही वजह है कि इस्लाम में इसे सख्त तरीन गुनाहों में शुमार किया गया है। जब इंसानी तारीख में पहली बार ये गुनाह सरजद हुआ तो उसने लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इससे पहले इंसान ऐसे गुनाह से वाकिफ नहीं थे। ये वाक़या इस बात की निशानी था कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में न रखे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जो उसे तबाही की तरफ ले जाता है। मगर ये कहानी सिर्फ एक गुनाह के वाक़े तक महदूद नहीं थी। इसके बाद जो नतायज सामने आए उन्होंने इंसानों को एक बड़ा सबक दिया। यही वो मरहला था जहाँ से इंसानी मुआशरे में अखलाकी आजमाइश का एक नया बाब शुरू हुआ। नाज़रीन, जब इंसानी तारीख में पहली बार जिना का गुनाह सरजद हुआ तो उसके असरात सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे मुआशरे में उसकी बाज़गश्त सुनाई देने लगी। लोगों ने महसूस किया कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखता तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है जो उसकी ज़िंदगी और मुआशरे दोनों को मुतासिर करते हैं। शैतान का मकसद हमेशा यही रहा है कि वो इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर करे। जब वो किसी एक गुनाह में इंसान को कामयाब होकर मुब्तला कर देता है तो फिर वो उसे मज़ीद गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इसी तरह इंसानी मुआशरे में भी यही हुआ। जब पहली बार बेहयाई का दरवाज़ा खुला तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर नजर आने लगे। कुछ लोगों के दिलों में खौफ पैदा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता रहा तो मुआशरा तबाही की तरफ जा सकता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले अंबिया के ज़रिए इंसानों को वाज़ेह हिदायत दी। इन हिदायत में इंसान को पाकदामनी, हया और निकाह के पाकीज़ा निज़ाम की तालीम दी गई। इस्लाम में निकाह को एक पाकीज़ा बंधन करार दिया गया है। ये सिर्फ दो इंसानों के दरमियान ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो मुआशरे को पाकीज़गी और इस्तेहकाम देता है। इसके मुकाबले में ज़िना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की इज्जत, ख़ानदान की बुनियाद और मुआशरे के अखलाकी निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया है कि ज़िना के करीब भी न जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बहुत बड़ा रास्ता है। ये हुक्म इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान को सिर्फ गुनाह से ही नहीं, बल्कि उसके करीब ले जाने वाले रास्तों से भी बचना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर और उसका ईमान होता है। जब इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता है तो वो बुराई के रास्ते से बचने की कोशिश करता है, मगर जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर उसके लिए गुनाह के रास्ते आसान हो जाते हैं। तारीख़ हमें यही बताती है कि जिन मुआशरों में हया और पाकीज़गी को अहमियत दी गई,
वो मुआशरे मजबूत रहे, और जहां बेहयाई आम हुई वहां अखलाकी जवाल ने मुआशरे को कमजोर कर दिया। यही वजह है कि इस्लाम इंसान को सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि पाकीज़ा जिंदगी गुजारने की भी तालीम देता है। नाजरीन, इंसान की जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, हिदायत और सही रास्ता भी अता किया है। ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। हाबील और काबिल का वाकया हमें हसद के अंजाम के बारे में बताता है, जबकि इंसानी तारीख के इब्तिदाई गुनाहों के ये वाकयात हमें ये सिखाते हैं कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में न रखे तो वो किस तरह गुमराही की तरफ जा सकता है। मगर इसके साथ साथ अल्लाह ताला की रहमत भी बहुत वसी है। जो शख्स अपनी गलतियों से सबक सीख कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। इसीलिए इस्लाम हमें तौबा और इस्लाह का रास्ता भी दिखाता है। यही वो पैगाम है जो इंसानी तारीख के इन वाकयात से हमें मिलता है कि इंसान को हमेशा अपने दिल को पाक रखना चाहिए, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के ताबे रखना चाहिए और ऐसे रास्तों से बचना चाहिए जो उसे गुनाह की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जो इंसान अल्लाह की हिदायत को अपना रास्ता बना लेता है वही हकीकी कामयाबी हासिल